بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ تمام دشمنوں کی گنیں مجھ پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ راکی کے ایک حکم پر مجھے اور ہمدانی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا، لیکن راکی کی زبان سے خلاف توقع حکم سن کر وہ ہمیں نشانے پر رکھ کر ساکت ہو گئے تھے، جیسے وہ بے جان مجسمے تھے، صرف راکی کے اشاروں پر کٹ پتلیوں کی طرح حرکت کر سکتے تھے۔ راکی کا ایک پیر زخمی ہوا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ گاڑی کی چھت پر چڑھا دیا، پھر اس کے حلق سے چیخ کر کہا، یہ فرہاد بہت خطرناک ہے۔ میں نے ابھی اس کے دماغ میں جا کر یہ معلوم کیا ہے کہ اس کی ایک چھوٹی سی خفیہ فوج نے کارنیول کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اگر ہم ایک بھی گولی چلائیں گے تو پھر وہ ہمیں یہاں سے زندہ واپس جانے نہیں دیں گے۔ میں تم ساروں کو حکم دیتا ہوں کہ یہاں سے فوراً بھاگ چلو۔ جو مسلح دشمن کارنیول کی دیواروں پر چڑھے ہوئے تھے وہ فوراً دوسری طرف چھلانگیں لگاتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ راکی کی گاڑی دوسری سمت گھوم گئی اور کارنیول کے احاطے سے باہر جانے لگی۔ ذرا سی دیر میں میدان صاف ہو گیا۔ میں نے سٹیج پر کھڑے ہو کر کہا، دوستو، خطرہ ٹل گیا ہے۔ مسٹر ہمدانی زخمی ہیں، انہیں فوراً طبی امداد پہنچاؤ۔ کتنے ہی لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور ہمدانی کو اٹھا کر لے گئے۔ سمورا زوسیکوف مسکراتی ہوئی آئی، پھر میرے ایک بازو کو تھام کر بولی، او مائی گڈنس، تم فرہاد علی تیمور ہو؟ تمہیں چھو کر بھی یقین نہیں آ رہا ہے۔ اسے چھونا نہیں کہتے، تم نے تو سختی سے پکڑ رکھا ہے۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، مائک کے ذریعے اعلان کرو تاکہ ٹکٹ کاؤنٹرز کھول دیے جائیں اور تماشائی تفریح کے لیے یہاں آ جائیں۔ آؤ دفتر میں چلیں۔ وہ میرا بازو اسی طرح تھام کر سٹیج سے نیچے آئی، پھر بولی، میں 6 برس تک ماسکو میں رہ چکی ہوں، وہاں پہلی بار تمہارا ذکر سنا تھا۔ وہاں کس سے ذکر سن لیا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اب تو تمہیں سچ بتانا ہی ہوگا، ورنہ کب میرے دماغ میں گھس آؤ گے مجھے تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دفتر میں پہنچنے سے پہلے ہی ہمدانی نے مائک کے ذریعے اعلان کیا، میرے دوستوں اور وفاداروں، میں خیریت سے ہوں، کارنیول کا گیٹ کھول دو اور لوگوں کو اندر آنے دو۔ مسٹر فرہاد، آپ کہاں ہیں؟ میں انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے اس کے پاس آ کر کہا، میں حاضر ہوں۔ وہ اٹھ کر مصافحہ کرنا چاہتا تھا، میں نے اسے اٹھنے نہیں دیا۔ اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی، پھر حیران ہو کر بولا، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں اٹھنا چاہتا ہوں مگر بیٹھا رہ جاتا ہوں۔ سمورا ہنس کر بولی، مسٹر فرہاد نے تمہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے بٹھا رکھا ہے، شاید یہ چاہتے ہیں کہ تم زخمی حالت میں نہ اٹھو۔ میں نے ہمدانی پر جھک کر اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا، ارے اٹھنا اور مصافحہ کرنا ضروری نہیں، تم آرام کرو، میں تھوڑی دیر بعد تمہارے پاس آؤں گا۔ جاؤ، لیکن میں سمورا سے زیادہ حسین ہوتا تو اسی کمرے میں رہ جاتے۔ میں ہنستا ہوا سمورا کے ساتھ دوسرے کمرے میں آیا، پھر بولا، اپنے متعلق کچھ بتانے سے پہلے ایک کپ گرم کافی پلاؤ، یعنی اتنی دیر میں تم میرے چور خیالات پڑو گے؟ ارے ہرگز نہیں، میں اس دشمن کے پاس جا رہا ہوں جو ابھی یہاں سے گیا ہے، وہ کمبخت پلٹ کر آ سکتا ہے۔ وہ کافی لانے چلی گئی۔ میں راکی ہڈسن کے اندر پہنچ گیا۔ وہ کارنیول سے دور جا کر رک گیا تھا۔ ایک ہواری نے اس کے زخمی پیر کی مرہم پٹی کی تھی۔ جب سے میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑا تھا تب سے وہ پریشان ہو کر سوچ رہا تھا، اب کیا کرے، کہاں جا کر چھپے؟ اب وہ دنیا کے کسی گوشے میں، پاتال میں اور سمندر کی اتاہ گہرائیوں میں بھی چلا جائے گا، تب بھی فرہاد سے چھپ نہیں پائے گا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، اوہ گاڈ، اس دنیا میں ہر ذی روح کو موت آتی ہے، فرہاد کو کیوں نہیں آتی؟ بہترین منصوبہ بندی کرو، اس کی شارگ پر خنجر رکھو، تب بھی وہ زندہ رہ جاتا ہے۔ فرار کے تمام راستے مسدود کر دو، تب بھی وہ گرفت سے نکل جاتا ہے۔ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے جو ہم میں پیدا نہیں ہوتی؟ میں نے اس کی سوچ میں کہا، ہم الو کے پٹھے ہیں، خداوند کریم کی عطا کردہ ذہانت سے بر وقت کام لینا نہیں جانتے۔ وہ قائل ہو کر سوچنے لگا، یہ درست ہے، فرہاد کے چاروں طرف موت ہی موت تھی، بچنے کی تو کوئی صورت نہیں تھی، لیکن وہ ایسے اعصابی تناؤ اور انتہائی مایوسیوں کے لمحات میں بھی پوری ذہنی صلاحیتوں سے سوچنا اور حالات سے نمٹنا جانتا ہے۔ اس کے ذہن نے سوچ لیا تھا کہ وہ یقینی موت کے سامنے صرف میرے دماغ پر قبضہ جما کر زندہ رہ سکتا ہے، اور میرے دماغ تک پہنچنے کے لیے اس نے جو چال چلی وہ قابل تعریف ہے۔ راکی جس گاڑی میں بیٹھا سوچ رہا تھا اس میں ہندو ہپنوٹزم کرنے والا مہاشکتی راج بھی تھا۔ وہ راکی کے ساتھ اس لیے کارنیول تک آیا تھا کہ ان سب کو میرے اسیر ہو جانے کا یقین ہو گیا تھا۔ شکتی راج نے راکی سے کہا تھا، جیسے ہی تم اسے زخمی کر کے دماغی کمزوری میں مبتلا کرو گے، میں اسے کارنیول کے کسی خیمے میں لے جا کر اس پر تنویمی عمل کروں گا اور اسے تمہارا تابعدار بنا دوں گا۔ وہ لوگ مجھے غلام بنانے کے لیے بڑی تیاریوں کے ساتھ آئے تھے
और बड़ी जिल्लत आमेज शिकस्त खाकर कार्निवल से दूर एक जगह गाड़ी रोके सोच रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। शक्तिराज ने कहा, अब सोचने के लिए क्या रह गया है? तुमने तमाम मुसल्ला कराए के आलाकारों को हुक्म दिया कि वो कार्निवल से भाग जाएं और वो भाग गए। अब क्या अकेले जाकर फरहाद से पंजा लड़ाओगे? रॉकी ने कहा, शक्तिराज, मैंने अपने लोगों को भागने का हुक्म नहीं दिया, फरहाद ने उन्हें भगाया है। अरे क्यों झूठ बोलते हो? मैंने अपनी इन 2 आंखों से देखा और कानों से सुना है। तुमने चीख चीख कर अपनी जुबान से हुक्म दिया था। भाई समझा करो, फरहाद मेरी जुबान से बोल रहा था। यह टेलीपैथी का एक तरीकाकार है। तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारे दिमाग में आ ही नहीं सकेगा, फिर वो तुम्हारी जुबान पर कैसे आ गया था? तुम्हें हम सब ने समझाया है कि अपने बदन से जहरीला खून निकाला करो। जहरीले खून की गर्मी से तुम्हारा दिमाग ज़्यादा सोचने समझने के काबिल नहीं रहता। भाई जब मैंने फरहाद को ज़ख्मी करके उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश की थी, तो क्या वो मुझे ज़ख्मी करके मेरे दिमाग में नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बल्कि आ गया है और शायद इस वक्त भी हमारे दिमागों में मौजूद है। अरे तुम अपनी बात करो, वो मेरे दिमाग में क्यों आएगा? वैसे सच सच बताओ, क्या वो मेरे अंदर भी आ सकता है? हाँ जी, अपने दिमाग का इंश्योरेंस कराओगे तब भी वो आएगा। प्लीज़ ये सोचो कि हमें अपनी टीम के तमाम अहम अफराद से मिलना चाहिए या नहीं? ज़रूर मिलना चाहिए। क्या तुम ये समझते हो कि फरहाद हमारे दिमागों से उनके दिमागों में भी जाएगा? हाँ, यही अंदेशा है। वैसे मैं ना जाना चाहूँ तब भी वो मुझे जबरन हमारे तमाम अड्डों पर ले जाएगा। मैं इसी इंतज़ार में हूँ और देखना चाहता हूँ कि वो मुझ पर जबर करेगा या मुझे मेरे हाल पर छोड़ देगा। वो दोनों सोचने लगे। उनकी बातों से ये मालूम हुआ कि महाशक्तिराज एक जहरीला आदमी है। यकीनन वो तनवीमी अमल के दौरान किसी भी मामूल पर अपनी जहरीली आंखों और जहरीले लबो लहजे के जरिए गालिब आता होगा। मैं चुपके से उसके दिमाग में आया। वो योगा का माहिर नहीं था, लेकिन उसके जहरीले दिमाग में बेचैनी सी पैदा हो गई थी। पारस की जहरीली महबूबा मारिया के साथ भी यही होता था। उसे भी योगा में महारत हासिल नहीं थी। इसके बावजूद अपने दिमाग में पैदा होने वाली बेचैनी से ये समझ लेती थी कि उसके ख्यालात पढ़ने कोई आया है। सोनिया ने ट्रेनिंग के दौरान उसे ऐसे हालात में सांस रोकने की तरबियत दी थी। बहरहाल शक्तिराज इसलिए सांस नहीं रोक सकता था कि वो नशे का आदी था। जब तक कोई सांप उसे डसता नहीं था, उस पर नशा तारी नहीं होता था। मैं उसके चोर ख्यालात पढ़ रहा था और वो रॉकी से कह रहा था, मेरे अंदर कुछ हो रहा है, अजीब बेचैनी सी हो रही है। शायद वो तुम्हारे अंदर है। फरहाद, मिस्टर फरहाद, अगर तुम मौजूद हो तो मुझसे बातें करो। वो शक्तिराज को पकड़कर झंझोड़ते हुए मुझे मुखातिब कर रहा था। शक्तिराज ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, ए भाई रॉकी, तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? मुझे फरहाद कह रहे हो और पकड़ पकड़ कर हिलाते जा रहे हो। मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे अंदर छुपे हुए फरहाद को पुकार रहा हूँ। तुम भी उससे इल्तिजा करो कि वो हमसे समझौता कर ले। रॉकी, मैं पहले जैसा अकेला हूँ, मेरे अंदर कोई नहीं है। अभी तुमने कहा था कि तुम्हारे अंदर बेचैनी सी हो रही है। देखो, महसूस करो, ये बेचैनी नहीं फरहाद है। मेरा दिमाग ख़राब ना करो। जब मुझे नशे की तलब होने लगती है तो ऐसी ही बेचैनी सी पैदा होती है। मुझे फ़ौरन मेरे कॉटेज में पहुंचाओ। मेरा सांप भूखा होगा। आज उसे दूध नहीं पिलाया है। मैं जाऊंगा, उसके सामने प्याले में दूध रखूंगा, खुद को डसवाऊंगा, फिर उसे दूध पीने के लिए छोड़ दूंगा। रॉकी ने अपना सर पीट कर कहा, ओ गॉड, मैंने तुम्हें अपने साथ लाकर तो हमाकत ही की है। क्या तुम्हें इस खतरे का ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि हमारे दिमागों में एक इंतहाई जहरीला सांप घुसा हुआ है? देखो रॉकी, अगर वो हमारे अंदर होता तो हम इतनी आज़ादी से यहाँ बैठे ना रहते। वो हमें तिगनी का नाच नचाता रहता। हाँ, मैं भी खुद को आज़ाद महसूस कर रहा हूँ, लेकिन उसने मुझसे इंतकाम क्यों नहीं लिया? अरे कोई दुश्मन तुम्हें कत्ल नहीं करेगा तो क्या तुम उससे लड़ोगे कि वो कत्ल क्यों नहीं कर रहा? अजीब अहमक हो। अहमक तो तुम हो। यहाँ बात कत्ल करने की नहीं, अपना ताबेदार बनाने की है। वो मुझे ताबेदार और अपना आलाकार क्यों नहीं बना रहा है? तुम इतने ही बेचैन हो तो अपनी टेलीपैथी के जरिए उसके पास जाओ और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर कहो कि वो तुम्हें अपना गुलाम बना ले या तुम्हें मार डाले। किसी तरह भी तुम्हें तड़पने और बेचैन होते रहने से बचा ले। रॉकी ने एक मातहत से कहा, गाड़ी चलाओ, शक्तिराज के कॉटेज में चलो। गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। रॉकी सोच रहा था, फरहाद को ख्याल ख्वानी के जरिए मुखातिब करना नादानी होगी। वो ज़रूर किसी दूसरे अहम मामले में उलझ गया है, इसीलिए मुझे आर्जी तौर पर उससे छूट मिल गई है। मुझे इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ौरन ही अपने टीम के तमाम अहम अफराद को फरहाद के बढ़ते हुए ख़तरे से आगाह कर देना चाहिए। उसने आंखें बंद करके ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, लेकिन ज़ख्मी होने के बायस दिमागी कमज़ोरी का एहसास हुआ। मैं चाहता था कि वो अपने लोगों से राबता करे,
اس لیے میں نے راکی کے اندر پھر خیال خوانی کی تحریک پیدا کی، پھر اس کے دماغ میں توانائی کا اضافہ کیا تو وہ ٹیلیپیتھی جاننے والے ایک ساتھی جیری ہاک کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ سانس روکنا چاہتا تھا۔ راکی نے مخصوص کوڈ ورڈز ادا کیے، پھر کہا، میں راکی اینڈرسن بول رہا ہوں، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ صاف اور سیدھی بات کرو، تمہید نہ باندھو۔ کس قسم کی گڑبڑ ہوئی ہے؟ فرحاد میری گرفت میں آتے آتے نکل گیا ہے۔ اس کمبخت نے مجھے زخمی کر دیا ہے۔ وہ میرے دماغ میں بھی آیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ دشمن تمہارے دماغ میں آنے لگا ہے اور تم ایسے وقت میرے دماغ میں آئے ہو اور اسے میرے بھی دماغ میں پہنچا رہے ہو۔ میں سانس روکنے سے پہلے تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ میرے بعد ہماری ٹیم کے کسی اور فرد سے رابطہ نہ کرنا۔ ٹھہرو، سانس نہ روکو۔ ابھی فرحاد میرے دماغ میں نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ابھی وہ ہمارے درمیان نہیں ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کسی دوسرے معاملے میں بے حد مصروف ہے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تمہیں صورتحال سے آگاہ کر رہا ہوں۔ جیری نے سانس روک لی۔ راکی دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ پھر جیری نے اس کے اندر آ کر کہا، راکی، تم نے میرے پاس آنے کی زبردست حماقت کی تھی، اس لیے میں تمہیں اپنے اندر سے نکال کر تمہارے اندر آیا ہوں تاکہ فرحاد موجود ہو تو وہ تمہارے ذریعے میرے دماغ میں چھپ کر نہ رہ سکے۔ یہ تم نے اچھا کیا۔ پلیز فرحاد کو اپنے دماغ سے دور رکھنے کی کوئی تدبیر بتاؤ۔ تدبیر سوچنے پھر اس پر عمل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ پتہ نہیں فرحاد اب تک تمہارے دماغ سے کیا کچھ معلوم کر چکا ہے۔ وہ تمہیں خاموشی سے مجبور کرتا رہے گا اور تم انجانے میں ہمارے تمام راز اس کے سامنے اگلتے رہو گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب راکی جیری کے دماغ میں گیا تھا تب میں بھی جیری کے اندر اس کے چور خیالات پڑھ رہا تھا۔ پہلے تو یہ معلوم کیا کہ وہ باربرا نکسن کے دماغ میں کن کوڈ ورڈز کے ذریعے جاتا ہے اور باربرا اس کے پاس آ کر کون سے کوڈ ورڈز ادا کرتی ہے، ان دونوں کی رہائش کہاں ہے۔ فی الحال میں زیادہ معلومات حاصل نہ کر سکا کیونکہ جیری سانس روک کر راکی کے پاس آ گیا تھا۔ یوں اس نے انجانے میں مجھے بھی اپنے دماغ سے باہر نکال دیا تھا۔ میں نے سوچا جیری راکی کے اندر ابھی موجود رہے گا اور میں راکی کو اپنی مرضی کے مطابق اپنا اعلی کار نہیں بنا سکوں گا، بعد میں اس سے رابطہ کروں گا۔ یہ سوچ کر میں اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ سمورا میرے سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ مجھ سے بولی، میں تمہاری فرمائش کے مطابق کافی لے کر آئی تھی، تمہیں خیال خوانی میں مصروف دیکھ کر دروازے سے لوٹ گئی۔ اب تھرمس میں کافی لائی ہوں، صبح تک خیال خوانی کرتے رہو گے تب بھی یہ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اس نے ایک پیالی میں کافی انڈیل دی۔ میں نے اسے پیتے ہوئے پوچھا، تم مجھے اپنے متعلق کچھ سچ سچ بتانا چاہتی تھیں؟ وہ بڑی رازداری سے بولی، میرا تعلق روس کی ملٹری انٹیلیجنس سے ہے۔ جن دنوں سونیا ماسکو میں تھی ان دنوں مجھے اس کی خفیہ نگرانی پر مامور کیا گیا تھا۔ میں نے تمہاری سونیا جیسی با کمال عورت آج تک نہیں دیکھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ میں ہمیشہ اس کی نگرانی کرنے میں ناکام رہتی تھی۔ شاید اسے پتہ چل جاتا تھا کہ ہم خفیہ جاسوس اسے مختلف ذرائع سے دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ اس نے جاسوسی کیمراز اور خفیہ آڈیو ریکارڈنگ سسٹم کو بھی ناکارہ بنا دیا تھا۔ میں نے کہا، وہ میری بیوی ہے اور تم اس کے متعلق مجھے بتا رہی ہو جبکہ تم نے اپنے بارے میں گفتگو شروع کرنی تھی۔ اوہ سوری، دراصل میں سونیا سے بہت متاثر ہوں بلکہ اس سے مروب ہوں۔ جب وہ ماسکو میں تھی اور ایک زہریلی لڑکی ماریا کو… سمورا، تم پھر پٹری سے اتر رہی ہو۔ چلو میں ہی تمہیں پٹری پر واپس لاتا ہوں۔ یہ بتاؤ، روس کی ملٹری سروس چھوڑ کر کارنیول میں کیا کر رہی ہو؟ ظاہر ہے اپنے ملک کے لیے جاسوسی کر رہی ہوں۔ یہ رپورٹ حاصل کرتی رہتی ہوں کہ یہاں کی نئی اسلامی حکومت میں کیسے کیسے سیاستدان ہیں اور کتنے سیاستدان خریدے جا سکتے ہیں، اور یہ کہ دوسرے ممالک سے آنے والے جاسوس یہاں کیا رول ادا کر رہے ہیں اور کیسی کیسی غیر معمولی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ تم جانتی ہو میں مسلمان ہوں اور اس اسلامی ملک کے خلاف جاسوسی نہیں ہونے دوں گا۔ ایسے میں تم کیا کرو گی؟ وہ مسکرا کر بولی، تمہارے سامنے سچ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہتھیار ڈال چکی ہوں۔ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام کروں گی تو اس میں ناکامی ہوگی۔ تم میری مخالفانہ چالوں کو میرے خیالات پڑھ کر معلوم کر لیا کرو گے۔ سیدھی سی بات ہے، میں دوست بن کر یہاں رہوں گی۔ ملٹری انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسران تمہیں وفاداری تبدیل کرنے کی سزا دیں گے۔ کیا تم ان کے عذاب سے مجھے نہیں بچاؤ گے؟ جب تک یہاں موجود ہوں تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا، لیکن یہاں سے جانے کے بعد دوسری مصروفیات میں گم ہو جاؤں گا تو میری عدم موجودگی تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ تم جہاں جاؤ گے میں خدمت گزاری کے لیے ساتھ رہا کروں گی۔ میرے بیوی بچے بھی میرے ساتھ نہیں رہ پاتے۔ ابھی کل تک پارس میرے ساتھ تھا لیکن حالات نے اچانک ہمیں جدا کر دیا۔ میں ایسا مقدر لے کر پیدا ہوا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی مستقل طور پر نہیں رہ پاتا۔ میں رہ کر دکھاؤں گی، میں تمہارا مقدر بدل دوں گی۔
हमारे दरमियान जुदाई का कोई लम्हा नहीं आ सकेगा। मैंने हंसते हुए कहा, आज तक कोई मेरे मामूलात में तब्दीलियां नहीं ला सका। अगर तुम ला सको तो चलो, तुम्हारी ही जीत होगी, वरना ऐसा करना बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत दिल दुखेगा, ना घर की रहोगी ना घाट की। तुम्हारे नाम से तो पहचानी जाऊंगी। मैं एक तरह से तुम्हारा बचाव करता हूं। तुम अपने किसी आला ऑफिसर से राबता करो। मैं अफसर से क्या कहूंगी? तुम्हारा इरादा क्या है? तुम्हें कुछ कहना नहीं होगा, मैं तुम्हारी जुबान से बोलता रहूंगा। मेरी असलियत याकूब हमदानी को मालूम नहीं है। मैं अपने सामान में एक ट्रांसमीटर छुपा कर रखती हूँ और वो सामान मेरे खैमे में है। मैं उसके साथ दफ्तर से बाहर आया, फिर कार्निवल के मुख्तलिफ खैमों से गुजरता हुआ उसके खैमे में पहुंच गया। बाहर बहुत रौनक थी, लोग खेल तमाशों में हिस्सा ले रहे थे। खैमे के अंदर खामोशी और तन्हाई थी। उसने मेरी गर्दन में बाहें डालकर कहा, शायद मैंने आज तक किसी को अपनी सांसों के करीब इसलिए नहीं आने दिया कि मेरे मुकद्दर में तुम लिखे हुए हो। मुझे यकीन करने दो कि मैंने तुम्हें पा लिया है। मैंने थोड़ी देर उसे यकीन करने दिया, फिर कहा, काम बहुत ज़रूरी है, अपने ऑफिसर से राबता करो। वो एक अटैची के पास बैठ गई। मैं बिस्तर पर बैठ गया। खैमे के अंदर एक सिंगल बेड, एक कुर्सी और आम इस्तेमाल के 2-4 मुख्तलिफ अशिया रखी हुई थीं। वो एक नन्हा सा ट्रांसमीटर लेकर आई, फिर बिस्तर पर मुझसे लगकर बैठ गई। राबता कायम करने लगी। चंद सेकंड के बाद दूसरी तरफ से किसी की आवाज़ आई। समोरा ने कोड वर्ड्स अदा किए। उधर भी एक ऑफिसर ने अपने कोड वर्ड्स उसे सुनाए, फिर कहा, समोरा रिपोर्ट सुनाओ। वो बोली, बहुत बुरी रिपोर्ट है। यहाँ फरहाद अली तैमूर है। क्या ताशकंद में है? मेरे दिमाग में है। मुझे तुमसे राबता कायम करने पर मजबूर कर रहा है और अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। उसने ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। मैंने ऑफिसर के पास पहुंचकर उससे कहा, हेलो, मैं फरहाद अली तैमूर तुमसे मुखातिब हूँ। वो अपनी जगह गुमसुम बैठा हुआ था। उसकी सोच कह रही थी, ये पहाड़ अचानक हमारे रास्ते में आ गया है, हमारे तमाम मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। कोई और टेलीपैथी जानने वाला होता तो उससे दोस्ती हो जाती, बहुत सी शराइत पर समझौता हो जाता, लेकिन ये फरहाद तो अज़ल से हमारा दुश्मन है। वो मेरे खिलाफ बेख्तियार सोच रहा था। फिर उसके दिमाग में ये बात आई कि मैं उसके ये ख्यालात पढ़ रहा हूँ। वो जल्दी से बोला, मिस्टर फरहाद, आप मेरे पास आए हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है। मैंने कहा, और बदनसीबी भी। सुबह होने तक अपने पूरे अमले के साथ ये मुल्क छोड़ दो, सिर्फ समोरा यहाँ रहेगी। मैंने इस पर तनवीमी अमल करके इसे अपनी फरमाबरदार कनीज़ बनाया है। जब तनवीमी अमल का असर ख़त्म होगा तो वो तुम्हारे पास वापस चली आएगी। प्लीज़ आप हमारे मुतल्लिक ऐसा दो टोक फैसला ना करें, हमसे मुज़ाकरात करें, कोई समझौता कर लें। समझौता मजबूरी की हालत में किया जाता है। खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे तुम्हारा मोहताज नहीं बनाया। सुबह 6 बजे यहाँ पाए गए तो तुम सबके जहनी तवाज़ुन बिगाड़ कर साइबेरिया के पागल खाने में पहुँचा दूंगा। मैंने राबता ख़त्म कर दिया। दिमागी तौर पर समोरा के खैमे में हाजिर हो गया। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, तुम्हारे ऑफिसर से कह दिया है कि मैं तुम पर तनवीमी अमल करके अपना ताबेदार बना चुका हूँ। जब इस अमल का असर ख़त्म होगा और तुम अपने इख्तियार में होगी तो उनके पास वापस चली जाओगी। ये तुमने अच्छा किया। अब मैं उनकी नज़रों में गद्दार नहीं रहूँगी। वो मुझे तुम्हारी मामूला और मजलूम समझते रहेंगे। ओह वाओ, तुम्हारा जवाब नहीं है। मैं तुम्हारे साथ आज़ादी से रहूँगी और वो लोग समझेंगे कि मैं तुम्हारी कनीज़ बनकर रह रही हूँ। वो बहुत खुश थी और जी भर के खुशी का इजहार कर रही थी। इंसान को ज़िंदगी में मुसरतें बहुत कम मिलती हैं, इसलिए एक को दूसरे से मुसरतें मिलती हों तो उन तमाम मुसरतों को फराख दिली से दूसरे की झोली में डालते रहना चाहिए। हातिम ताई भी यही करता था, लेकिन मैंने उस रात हातिम ताई बनकर बड़ा नुकसान उठाया। बड़ी देर तक रॉकी हडसन से गाफिल रहा, जिसका नतीजा ये निकला कि वो मेरी गिरफ्त से हमेशा के लिए आज़ाद हो गया। दूसरी सुबह जब मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और रॉकी के दिमाग में पहुंचना चाहा तो मेरी सोच की लहरों को उसका दिमाग नहीं मिला। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। तभी मौत मर चुका था या फिर किसी ने उसे कत्ल कर दिया था। मुझे यकीन की हद तक शुबा था कि जेरी हॉक ने उसे कत्ल किया है। मैंने बारहा ऐसे तमाशे देखे हैं। किसी तंजीम में ख्वाह कितना ही अहम शख्स हो, उस अहम शख्स से अगर तंजीम को नुकसान पहुंचने वाला होता है तो उसकी अहमियत को नज़रअंदाज करके उसे मौत की नींद सुला दिया जाता है। जेरी और बारबरा निक्सन को भी यही अंदेशा खाने लगा होगा कि मैं उन्हें भी अपना मामूल और ताबेदार बना लूँगा। ऐसा वक्त आने से पहले ही रॉकी को ख़त्म कर दिया गया था। जेरी और बारबरा एक बार मेरे मामूल रह चुके थे। मैं पिछली शाम रॉकी के ज़रिए जेरी की आवाज़ सुन चुका था।
उसके और बारबरा के कोड वर्ड्स भी मालूम कर चुका था। अब उन्हें ट्रैप करने का यही एक रास्ता रह गया था कि मैं जेरी बनकर बारबरा के पास जाऊं और बारबरा बनकर जेरी के दिमाग में जाकर उसकी कोई बड़ी कमज़ोरी मालूम कर लूं। मैंने इसी मकसद के लिए पहले ही दोनों के कोड वर्ड्स मालूम कर लिए थे। मैंने आंखें बंद कीं, बारबरा के लबो लहजे को जहन में दोहराया, फिर परवाज करते हुए उसके पास पहुंच गया। जेरी के लहजे में बोला, हेलो बारबरा। वो बोली, प्लीज़ कोड वर्ड्स। मैंने वही कोड वर्ड्स अदा किए जो जेरी ने उसके पास आने के लिए मुकर्रर किए थे, लेकिन उसने सांस रोक ली। मुझे शुबा हुआ कि वो धोखा खाने से पहले होशियार हो गई है। फिर भी मैंने दूसरी कोशिश की। 1 मिनट के बाद फिर उसके पास आकर पूछा, क्या बात है, मैं जेरी हूँ। उसने फिर सांस रोक ली। इस बार मैंने बारबरा का लहजा इख्तियार किया और जेरी के दिमाग में गया। बारबरा ने जो कोड वर्ड्स मुकर्रर किए थे उन्हें सुनाया। जेरी ने फौरन ही सांस रोक ली। मुझे यकीन हो गया कि दोनों ने एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए अपने दरमियान नए कोड वर्ड्स मुकर्रर कर लिए हैं और ये फ़र्ज़ कर लिया है कि उनके पुराने कोड वर्ड्स के ज़रिए दिमागों में आने वाला फरहाद ही होगा, और मैंने अपनी हरकतों से ये साबित कर दिया था। सिमोरा ने खैमे में आकर पूछा, क्या ख्याल है, आउटिंग के लिए चलोगे? हाँ, मैं ताशकंद शहर अच्छी तरह देखना चाहता हूँ। मैंने रेडीमेड मेकअप के ज़रिए चेहरे में ज़रा सी तब्दीली की। सिमोरा ने पूछा, क्या इसलिए खुद को छुपा रहे हो कि रॉकी तुम्हें देख कर गया है? रॉकी अब इस दुनिया में नहीं है। दुश्मनों ने अपनी सलामती के लिए उसे मार डाला है। ओह गॉड, उन्होंने अपने टेलीपैथी जानने वाले को मार डाला? क्या उसके साथ ऐसा कोई ख़ास आदमी था जिसने तुम्हें कल रात यहाँ देखा था? सिमोरा का सवाल सुनकर मुझे महाशक्ति राज याद आया। पिछली बार जब मैं उसके दिमाग में था तो वो बेचैनी महसूस कर रहा था और ये समझ रहा था कि नशे की तलब के बायस उसके अंदर बेचैनी सी पैदा हो गई है। वो नशा हासिल करने के लिए खुद को सांपों से डसवाता था। जहां उसने रिहाइश इख्तियार की थी वहां 3 पटारों में 3 किस्म के जहरीले सांप थे जिन्हें वो दूध पिलाता था। हर रोज़ उनमें से एक सांप उसे डस लिया करता था। पिछली रात रॉकी उसके साथ उसकी रिहाइश गाह में आया था। उस वक्त जेरी हॉक रॉकी के दिमाग में था और ये यकीन करना चाहता था कि उस वक्त मैं रॉकी के अंदर मौजूद हूँ या नहीं। मैं वहाँ से चला आया था। अब तकरीबन 12 घंटे के बाद महाशक्ति राज के पास गया तो वो फिर अपने दिमाग में बेचैनी महसूस करने लगा। उसकी सोच कह रही थी, क्या फिर मेरे दिमाग में जेरी आया है? मैंने कहा, हाँ मैं जेरी बोल रहा हूँ। ये बताओ, कल रात रॉकी तुम्हारे साथ इस रिहाइश गाह में आया था, वो कहाँ है? वाह, बहुत खूब, तुम मुझसे पूछ रहे हो। मेरे हाथों से उसे हलाक कराया और अब मुझसे पूछ रहे हो। मैंने उसे सोचने पर मजबूर किया तो वो पिछली रात के वाक़यात के बारे में सोचने लगा। वो नशे की तलब से मजबूर होकर अपनी रिहाइश गाह में आया था। उसके साथ रॉकी था। जब वो एक पटारा खोलकर एक सांप निकालने लगा तो रॉकी सहम कर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सांप मेरी गिरफ्त में है, ये मेरी मर्जी के मुताबिक सिर्फ मुझे डसेगा। शक्तिराज ने ऐसा कहते वक्त अपने अंदर जेरी हॉक की आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, नहीं शक्तिराज, ये सांप मेरी मर्जी के मुताबिक तुमसे पहले रॉकी को डसेगा। शक्तिराज इनकार करना चाहता था लेकिन खुद को बेबस महसूस कर रहा था। वो रॉकी से कहना चाहता था, भाग जाओ यहाँ से, वो दूसरा टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारी मौत चाहता है। लेकिन वो ऐसा ना कर सका। जेरी ने कहा, तुम्हारा दिल, दिमाग, तुम्हारी जुबान और तुम्हारा तमाम जिस्म मेरे कब्जे में है। देखो, तुम सांप को उसकी तरफ ले जा रहे हो। वो रॉकी को हलाक नहीं करना चाहता था लेकिन बेख्तियार सांप को उसकी तरफ लेकर जा रहा था। रॉकी उछलकर खड़ा हो गया। सांप की ऐसी दहशत थी कि कुर्सी से उछलते ही तवाज़न कायम ना रख सका, फर्श पर गिर पड़ा। फिर उसे उठने का मौका ना मिला। शक्तिराज ने सांप के मुंह को उसकी गर्दन पर रख दिया। दूसरे ही लम्हे में उसके हलक से चीख निकली। तब जेरी ने शक्तिराज के दिमाग को ढील दे दी। वो हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर रॉकी को दम तोड़ता हुआ देख रहा था। जेरी ने कहा, शक्तिराज, इसे भूल जाओ और ये याद रखो कि तुम्हें नशे की तलब हो रही थी। ये मंजर देखकर वो और भी नशे का मोहताज हो गया था। उसने उस सांप को पटारे में रखकर बंद किया। उसके पालतू सांप एक वक्त में एक ही बार डसते थे, फिर दूध मांगते थे। वो दूसरा सांप दूसरे पटारे से निकालते हुए बोला, लेकिन जेरी साहब, मैं तो अभी मदहोश हो जाऊंगा। इस लाश का क्या बनेगा? उसकी फिक्र ना करो, ये गायब कर दी जाएगी। शक्तिराज ने अपना मुंह खोलकर जुबान निकाली, फिर मुट्ठी में पकड़े हुए सांप को बिल्कुल करीब लाया। सांप ने उसकी जुबान को डस लिया। उसके हलक से एक कराह निकली। उसने फौरन ही उसे पटारे में डालकर बंद कर दिया।
फिर लुढ़खड़ाता हुआ आकर बिस्तर पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे होश नहीं रहा। वो खुली आंखों से कमरे को देख रहा था, लेकिन नशे की रंगीन वादियों की सैर कर रहा था। दूसरी सुबह आंख खुली तो याद आया कि पिछली रात वो क्या करता रहा था। उसने कुर्सी की तरफ देखा। वहां फर्श पर रॉकी की लाश मौजूद नहीं थी। जेरी के आदमी उसे उठाकर ले गए थे। मैं शक्तिराज के ये ख्यालात पढ़ रहा था। जेरी के लहजे में बोला, हाँ, वो लाश मेरे आदमी ले गए हैं। तुम मुत्तहिदा मजहबी फ्रंट के रबी और पादरियों को फ़ोन के जरिए इतला दो कि रॉकी मारा गया है। जेरी साहब, मैं कैसे इतला दूं? आप जानते हैं हम तमाम अहम अफराद एक दूसरे की रिहाइश गाह और फ़ोन नंबर नहीं जानते। आप टेलीपैथी जानने वाले हमें एक दूसरे की खबरें पहुंचाते रहते हैं और किसी मुकर्रर की हुई जगह हमें मीटिंग के लिए बुला लेते हैं। उसकी बातों से पता चला कि वो सब के सब बहुत मोहतात हैं। किसी भी टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन से महफूज रहने के लिए यह तरीक़ाकार इख्तियार किया है। चूँकि रॉकी सबके नाम, पते और फ़ोन नंबर वगैरह जानता था और उनसे दिमागी राबता भी रखता था, इसलिए पहली फुर्सत में उसे मार डाला गया ताकि उस तंजीम तक पहुंचने का मुझे कोई रास्ता ना मिल पाए। मैंने दिमागी तौर पर वापस आकर समोरा को देखा। वो बोली, ख्याल ख्वानी से फुर्सत मिल गई है तो चलो। फुर्सत कहाँ मिलती है, हमारे दुश्मन शेर से सवा शेर हो जाते हैं। मैं कभी कभी जीतने वाली बाजी हार जाता हूँ। ये तो मेरे लिए दुख की बात है कि मेरे आते ही तुम्हारा काम बिगड़ रहा है। इसमें शुबा नहीं है कि तुम मेरा चाल चलन बिगाड़ती रहीं। अगर कल रात रॉकी के साथ लगा रहता तो उस तंजीम के तमाम अहम अफराद के नाम और पते मालूम कर लेता। वो करीब आकर बोली, मैं बहुत बुरी हूँ, क्या मुझे छोड़ दोगे? नहीं, तुमने काम बिगाड़ा है, तुम ही इसे संवारोगी। अभी ताश का एक पत्ता हाथ में है। मैंने जेरी के दिमाग से सिर्फ कोड वर्ड्स ही नहीं, उसकी और बारबरा की रिहाइश गाहों के पते भी मालूम कर लिए थे। यकीन तो नहीं है कि वो उन मकानों में होंगे। कोड वर्ड्स की तरह अपनी अपनी रिहाइश गाह भी बदल दी होगी। फिर भी चलो, मैं पता बता रहा हूँ, वहां तक मेरी रहनुमाई करो। हम खैमे से बाहर आ गए। याकूब हमदानी से मुलाकात हो गई। उसने सिमोरा से कहा, तुमने मेरे यार को ऐसा दीवाना बनाया है कि मुझे वो भूल गया है। कहाँ है वो? वो बोली, तुम यारी का दावा करते हो और यार को नहीं पहचानते? उसने चौंक कर मुझे देखा, फिर करीब आकर और गौर से देखने लगा। मैंने हंसते हुए कहा, हमदानी, मैं फरहाद हूं। वो मुझसे लिपट कर बोला, कमाल है, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो। क्या फिर दुश्मनों से सामना होगा? खुदा बेहतर जानता है, सामना हो सकता है, इसलिए इतनी एहतियात से बाहर जा रहा हूं। हम बातें करते हुए समोरा की कार के पास आए। हमदानी ने कहा, तुम्हारे आते ही मुझे तमाम दुश्मनों से निजात मिल गई। मेरा ख्याल है अब कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। ऐसी बात नहीं है। गैर मुल्की एजेंटों के छुपने के लिए तुम्हारा ये कार्निवल बहुत ही महफूज पनाहगाह है। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, कल रात मैंने यहाँ से रूसी जासूसों को भी भगा डाला है। उसने हैरानी से पूछा, क्या वाकई? लेकिन वो भागने वाले जासूस कौन थे? मैं तो अपने तमाम मुलाजमों को जानता हूँ। वो तुम्हारे मुलाजिम नहीं थे। वो समोरा और दूसरे रूसी मुलाजमों को ट्रैप करके इन्हें हुकूमत के खिलाफ जासूसी और तखरीब कारी के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। भाई, ये कार्निवल तो मेरे लिए मुसीबत बन रहा है। मेरे दोस्त फरहाद, तुम नहीं रहोगे तो मैं दुश्मनों को कभी पहचान नहीं पाऊंगा। सिमोरा ने कहा, दुश्मनों को जल्द ही यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा कार्निवल मौत का कुआं है। जो दुश्मन बनकर आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा, और जो वापस गया वो दोबारा आने की जुर्रत नहीं करेगा। मैं सिमोरा के साथ गाड़ी में बैठकर जाने लगा। हमदानी ने कहा, यार जल्दी वापस आना। मुझे मालूम होता कि तुम्हारे बगैर ये कार्निवल जारी नहीं रख सकूंगा तो मैं तुम्हारे बगैर पैदा होने से इनकार कर देता। हम हंसते हुए कार्निवल के हाथे से बाहर आ गए। सिमोरा कार ड्राइव कर रही थी। अच्छी खासी सर्दी पड़ रही थी। चूंकि हम अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सर्द इलाकों में गुजारते रहे हैं, इसलिए इस शदीद सर्दी के बावजूद मौसम खुशगवार लग रहा था। मैंने समोरा को सबसे पहले बारबरा की रिहाइश गाह का पता बताया। वो मुझे शहर के एक दूर उफ्तादा हिस्से में ले आई। वहाँ छोटे छोटे कॉटेजेस बने हुए थे। उनमें से एक कॉटेज के सामने जाकर गाड़ी रोक दी। मैंने कॉटेज का नंबर पढ़ा, वही था। समोरा ने कहा, तुम बैठो, मैं जाती हूँ। हो सकता है वहाँ तुम्हारे लिए कोई जाल बिछाया गया हो। जब ये समझती हो कि वहाँ जाल बिछाया जा सकता है तो ये भी समझ लो कि मैं यहाँ आराम से बैठकर तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा। तुम यहाँ बैठकर मेरे दिमाग में रहकर मेरी हिफाजत कर सकते हो, लेकिन वहां तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। वो दुरुस्त कह रही थी। मेरा जवाब सुने बगैर कार से निकलकर कॉटेज के इहाते में गई। वहां खामोशी और वीरानी सी थी।
जैसे उस कॉटेज में कोई रहता ही न हो। सिमोरा ने बरामदे में पहुंचकर दरवाजे के साथ लगी हुई कॉल बेल का बटन दबाया। ज़रा इंतज़ार किया, फिर बटन दबाया। अंदर से किसी की आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसने तीसरी बार बटन दबाया। मैंने सोच के ज़रिए कहा, दरवाजे पर दस्तक दो। उसने दस्तक देने के लिए दरवाजे पर हाथ मारा तो वो खुलता ही चला गया। सिमोरा ने उसे पूरी तरह खोल कर देखा, फिर चौंक गई। कमरे के वस्त में फर्श पर एक नौजवान लड़की की लाश पड़ी थी। वो बोली, फरहाद तुम मेरे अंदर हो? हाँ, और तुम्हारे जरिए एक लाश देख रहा हूँ। अंदर जाओ। किसी से भी सामना हो तो उसे बोलने पर मजबूर करना, ताकि मैं उसके अंदर पहुंचकर तुम्हें उससे महफूज रख सकूं। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।